میں سب کو سلام۔ تو ہم نے 2 حوالے دیکھے جس سلسلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے گرد ایک ڈھال بنا سکتے ہیں تاکہ شیطان کے سارے منصوبوں کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں۔ ان 2 حوالوں میں جو خاص حوالہ جو دیکھیں گے ناہوم، اس کا اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت، پراگندہ کرنے والا تجھ پر چڑھ آیا ہے، قلعہ کو محفوظ رکھ، راہ کی نگہبانی کر، کمر بستہ ہو اور خوب مضبوط رہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ ہم اپنے ٹاپک کے اوپر شیلڈنگ یور سیلف اگینسٹ سیٹن، ہم 1 منٹ کے دعا کریں۔ خدا آسمانی باپ، پیار سے میرے خداوند، کلام کے سیکھنے سکھانے میں تو پاک سے میں رہنمائی کر، ہمیں سے ایک ایک پر ذہن پر قبضہ کر، ایک ایک روحانی روحانی گزر کے مطابق عنایت کر، یہ نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں تاکہ شیطان کے سارے حملوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہم قائم کر سکیں۔ تو اسی ایک آیت کے 4 حصے جو ہیں، پراگندہ کرنے والا تجھ پر چڑھ آیا ہے۔ پہلی بات نمبر 1، قلعہ کو محفوظ رکھ۔ نمبر 2، راہ کی نگہبانی کر۔ تیسرا، کمر بستہ ہو اور خوب مضبوط ہے۔ نمبر 1، قلعہ کو محفوظ رکھ۔ اس کے لیے حوالہ دیکھتے ہیں 1 کرنتھیوں 3 باب 16-17 آیت۔ 1 کرنتھیوں 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت۔ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ 1 کرنتھیوں 3 باب اس کی 16 آیت اور 17 آیت۔ کیا تم اپنی بابت نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے۔ قلعہ کو مضبوط رکھو، قلعہ کو محفوظ رکھو۔ ہمارا جو بدن جو ہے، ہماری شخصیت جو ہے، یہ قلعہ جو ہے، یہ خدا کا مقدس ہے۔ اس کی ہم نے محفوظ، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم اس کو برباد کریں گے تو خدا ہمیں برباد کرے گا۔ دوسرا والا ہم دیکھتے ہیں 16 میں کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بدن کو قائم رکھنا ہے۔ جب میں نے 1967 میں یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور منجی قبول کیا، اس وقت کے بعد خدا میرا محافظ ہے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے، کیا میرا جسم خدا کا مقدس ہے؟ کراس چیک ایزیلی اس آیت میں دیکھتے ہیں۔ اگر یسوع مسیح تم میں نہیں ہے تو تم نامقبول ہو۔ اگر ہمارے اندر ان ایکسیپٹنس ہے، لوگ معاشرہ نہیں مانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے میرا جو زندہ خدا کا مقدس جو ہے، اس میں تھوڑی سی خرابی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قلعہ کو محفوظ رکھ۔ ہم نے اس قلعے کو، اس مقدس کو جو خدا کا مقدس ہے، اس کو محفوظ رکھنا۔ نمبر 2، آئے میرے بیٹے، دانائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہو۔ تب تو بے کھٹکے اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گا۔ اپنے راہ کی نگہبانی کر۔ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں، اگر ہم ان کی حفاظت کریں گے تو کیا لکھا ہے، تو بے کھٹکے اپنے راستے پہ چلے گا اور تجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ امثال 16 باب اس کی پہلی آیت اور 25 آیت۔ امثال 16 باب اس کی پہلی آیت، دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ 25ویں آیت، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ 2 میں نے حوالے پڑھے۔
ऐसी राह भी है जो इंसान को सही मालूम होती है मगर उसका अंजाम हलाकत है। थोड़ा गौर करें, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अपनी राह की निगरानी कर। नंबर 3, कमर बस्ता हो। इफ्सियों 6 बाब उसकी पहली जो हमने हवाला पढ़ा, इफ्सियों 6 बाब के पहला हवाला पढ़ा, उसमें से मैं सिर्फ 2 बातें, 2 रेफरेंस पढ़ूंगा, 2 आयतें पढ़ूंगा। इफ्सियों 6 बाब हमने जो हवाला पढ़ा उसमें से देखेंगे सिर्फ 10 आयत और 11 आयत। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। कमर बस्ता हो, हमने आपको महफूज करना है, मजबूत करना है ताकि अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में हम अपने पर कायम रह सके। अबलीस के मंसूबे जो है छोटे मंसूबे नहीं है। आसमानी फौजों पर अगले जो आपने हवाला वार सुना होगा, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और उस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकाम में है। अपनी राह की हिफाजत कर, कमर बस्ता हो। हमने देखना है कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें रुकावटें आती हैं। साइंसी कानून है, where there is action there is reaction, greater reaction greater action। हम साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, अगर उसकी ब्रेकिंग लूज होगी तो हम तेज नहीं चला सकते। तेज कार उसी वक्त हम चलाएंगे अगर उसकी ब्रेकिंग स्ट्रांग होगी। ऑपोजिशन का होना नेचुरल है, रुकावटों का होना नेचुरल है, इससे हम रुक नहीं सकते हैं। मगर है कि हमने अपने आप को कमर बस्ता करना है, अपने आप को मजबूत करना है ताकि रुकावटों के मुकाबले में हम अपना कायम रख सके, कोई रुकावट ना सके। मछली जो है वो हमेशा पानी के अगेंस्ट जाती है। अगर आप अपने स्विमिंग करते हैं किसी नहर में या किसी रिवर में स्विमिंग करें तो पानी के अगेंस्ट जाते हैं। पानी सिर्फ जा रहा है तो आप पानी को ऐसे हटाते हैं, इसी फिर ही आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। कमर बस्ता हो। ये दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है, हलाकत के रास्ते पे, हमने इसके उलट जाना है, हमने स्लीपी रास्ते पर जाना है। उसके लिए हमें जंग के लिए अपने आप को मजबूत करना है, कमर बस्ता होना है, फिर ही हम इसका दुनिया की तारीकी के दुनिया हवा की अमलदारी का हाकिम जो है शैतान, उसका मुकाबला करना है। मैंने शुरू में जिक्र किया, जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, व्हेन आई एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज माय पर्सनल सेवियर एंड लॉर्ड, हवा की हाकिम जो है, प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर, उसको मालूम हो गया पब्लिकली कि आज से गॉड इज रिस्पॉन्सिबल, नो मोर एक्सेस ऑफ डेविल ऑन माय लाइफ। किस तरीके से हम देखते हैं। नेक्स्ट, खूब मजबूत रहे। इफ्सियों 4 बाब उसकी 11 आयत, इफ्सियों 4 बाब उसकी 11 और 12 आयत। उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदल तरक्की पाए। मैंने क्या पढ़ा, क्या गौर कर लिया। अपने आप को मजबूत रखने के लिए जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 1 दिन का बच्चा है या 1 महीने का या 1 साल तक, बहुत कमजोर है, छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता हमने बढ़ना है, रूहानी तरक्की करनी है, क्रिश्चियन मैच्योरिटी में आगे बढ़ना है। क्योंकि एक छोटा बच्चा कोई लड़ाई कर सकता है। आज का मजमून है कि हमने अपने आप को कमर बस्ता करना है। जब दाऊद ने जंग के लिए जाति जुलियत के साथ चला तो उसने किंग सॉल का लिबास पहन लिया। किंग डेविड ने कहा, उसने कहा मैं नहीं चल सकता, वो बहुत भारी है, उसने वो उतार दिया। क्यों? वो दाऊद छोटी उम्र का, कच्ची उम्र का था और वो लिबास बहुत बड़ा था। आज का हमारा टॉपिक है कि रूहानी लिबास से अपने को मजबूत करना है। उस वक्त होकर जब हम क्रिश्चियन मैच्योरिटी में आगे बढ़ेंगे। क्रिश्चियन मैच्योरिटी में आगे बढ़ने के लिए, रूहानी तरक्की के लिए जरूरी है कि 5 लोग हमारी मदद करते हैं: पासवान, पास्टर, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स
स्कूल टीचर्स, बाइबल संडे स्कूल टीचर्स, वो हमारी मदद करते हैं। किसी किसी हमने रूहानी तरक्की में आगे बढ़ना है, जब हम क्रिश्चियन मैच्योरिटी में आगे बढ़ जाएंगे फिर हम इस काबिल होंगे कि खुदा का मंसूबा मेरी शख्सी जिंदगी के लिए उसको मैं पूरा कर सकूं। खुदा का मंसूबा हर शख्स के लिए अलग अलग है। अब सवाल है कि उस मंसूबे को मैं कहां तक पूरा करता हूं। उसी वक्त होगा कि अगर हम रूहानी ग़िज़ा को हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी रुकावटें हैं। मिसाल के तौर पर रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने सुना होगा, रेडिएशंस एक स्लो पॉइजनिंग है। मादाम क्यूरी उर्दू में कहते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ मैंने। इसकी डेथ इसने इन्वेंशन की थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, मगर ये रेडिएशन में रहती थी, जिसका स्लोली उसकी बॉडी में रेडिएशन असरअंदाज हुई और उसकी स्लो पॉइजनिंग के साथ उसकी डेथ हो गई। आजकल भी हॉस्पिटल में जो एक्सरे सेक्शन में काम करते हैं वो महफूज रखते हैं, अपने आप को महफूज रखते हैं, क्योंकि बहुत सी रेडिएशन होती है जो इफेक्ट कर सकती है हमारे जिस्म को। इस वक्त भी बहुत सी रेडिएशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन रेडिएशन में शैतानी रेडिएशन भी है। क्या उसके रुकावट, उसको मुकाबले के लिए हमने कुछ शील्ड बनाई है ताकि हम शैतानी उस रुकावटों को दूर कर सकें, रोक सकें? ये बहुत जरूरी है। अगर हमने अपने आप को महफूज नहीं किया, एस्ट्रोनॉट्स जब वो चांद पर जाते हैं, देखा हुआ या फजा में जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं चले जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स की एक स्पेशल लिबास होता है, शीट होती है, ताकि वो कवर कर सके बाहर की रेडिएशन को। हमारे किस किस्म की रेडिएशन है? बहुत सी रेडिएशन शैतानी। क्या उसके मुकाबले में हमने अपने आप को हमने एनालिसिस करनी है कि कौन सी हमारे खिलाफ जो रेडिएशन आ रही है उसका हमने मुकाबले के लिए अपने आप को महफूज करना, ताकि हम अपने आप को कायम कर सकें। कि किस तरीके से मुकाशवा में भी हवाला है, उसको हम पढ़ भी सकते हैं। मुकाशवा 9 बाब उसके 5 से 10 आयत तक, कि किस तरीके से ये एक्चुअली ये हवाला जो है एक पेशन हुई है न्यूट्रॉन बॉम्ब की। अगर आपने देखा होगा एटॉमिक बॉम्ब जो 1942 में हिरोशिमा नागासाकी पे चला था, उसके आज तक उसके इफेक्ट्स हैं, आज तक। तो शैतानी ख्यालात, शैतानी मंसूबे जब हमारे एक बार जहन में आ जाए तो उनका निकालना कोई आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। स्लो पॉइजनिंग है। मैडम कुरी का रेडिएशन के बारे में मैंने जिक्र किया, उसी तरीके से मुकाशवा में हवाला आप देख सकते हैं कि वो जो रेज जो है न्यूट्रॉन बॉम्ब स्पेशली इस किस्म का है। एक है एटॉमिक बॉम्ब, उसके बाद एक है हाइड्रोजन बॉम्ब, एक तीसरा है न्यूट्रॉन बॉम्ब जिसका हवाला मुकाशवे में भी है। उसकी ये खासियत है कि वो जो एटॉमिक बॉम्ब है वो सारी आग को जला देता है, दरख्तों को जलाता है, बिल्डिंग को जलाता है, हाई हीट है इसकी, जिसका हवाला 2 पीटर में मिलता है। मगर न्यूट्रॉन बॉम्ब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर न्यूट्रॉन बॉम्ब की ये खासियत है कि दरख्त कायम रहेंगे, ग्रीनरी कायम रहेगी, एवरीथिंग विल बी सेम फॉर न्यूट्रॉन बॉम्ब। ओनली ह्यूमन लाइफ ड्यू टू कैंसर, यू नो लिटिल बिट अबाउट कैंसर, स्लोली उसके जो लाइफ सेल्स हैं वो स्लोली डेड हो, एक दिन में भी, एक महीने में भी, 5 महीने में भी, का जो 6 महीने तक लिखा हुआ। और ये भी लिखा हुआ है लोग मौत मांगेंगे मगर मौत मिलेगी। अगर इस किस्म के इफेक्ट स्लोली चल रहे हैं तो हाउ अबाउट द वेपन्स ऑफ सैटन, वो भी ऐसे स्ट्रॉन्ग है, बाजार में मालूम नहीं होता। हम समझते हैं एवरीथिंग इज ओके, हम समझते हैं कि हर चीज ओके है, मगर हर चीज ओके नहीं होती है। बल्कि हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर हम अपने आप को महफूज किया हुआ है तो फिर तो शैतान के मुकाबले में हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हमने जो 2 हवाले देखते हैं कि दूसरा ग्रंथियों 10 बाब 5 आयत कि किस लिखा कि दूसरा ग्रंथियों 10 बाब उसकी 5 आयत कि किस तरीके से हम इब्लीस के मुकाबले में इतने ज्यादा मजबूत हो गए, हम दूसरों के ख्यालात को कैद करके ये समझ के काबिल करते हैं।
इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि शैतान हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकेगा, बल्कि इसके मुकाबले में हम लोगों के ज़हन को कैद करके यीशु मसीह की ताबीर कर देंगे। साधु सुंदर सिंह गाड़ी में सफर कर रहा था और एक जादूगर ने कहा कि मैं तेरे पर जादू करूंगा। उसने कहा कर ले जादू। उसने जादू शुरू किया तो उस पर असर ना हुआ। उसने कहा तेरे पास कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से मेरा जादू नहीं चल रहा है। उसके जेब में अंजीर थी। उसने अंजीर को निकाल कर साइड पर रख दिया। उसने फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया, मगर कामयाब ना हो सका। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर यीशु था और इब्लीस के मंसूबे मुकाबले में वो काम ना कर सका। सैमुअल के बारे में पढ़ते हैं, सैमुअल के बारे में 3 बाब उसकी 19 आयत कि खुदा कहता है कि उसने उसकी किसी बात को मट्टी में ना मिलने दिया। कामयाब जिंदगी, सक्सेसफुल जिंदगी। क्यों? इसलिए कि उसके शख्सियत के गिर्द एक दीवार थी, महफूज थी। अब हम इस मिसाल देखेंगे कि अगर हम महफूज ना हो तो क्या बनेगा। ये मैं हवाला पढ़ूंगा और उसके बाद इस पर गौर भी करेंगे। मिसाल 23 बाब 31 आयत। दिस रेफरेंस स्पेशली फॉर यंग पीपल। मिसाल 23 बाब उसकी 31 आयत से पढ़ूंगा। मिसाल 23 बाब उसकी 31 आयत। वही किसकी आंखें सुर्खी है, वही जो देर तक मैनोशी करते हैं, वही जो मिलाई हुई मैग की तलाश में रहते हैं। जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े, जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे तो उस पर नजर ना कर। इसकी तशरीह मैं ऐसे करता हूं। When a young person, I'm reading this, when wine is red and it sparkles in the cup, goes down smoothly, and don't look on that. Just like when a young person looks the young other person. Slowly, आहिस्ता से मैं बोल पढ़ रहा हूं। जब उसका अक्स जाम पर पड़े, जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे तो उस पर नजर ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और रफई की तरह डस जाता है। तेरी आंखें अजीब चीजें देखेंगी, तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी, बल्कि तू उसकी मानिंद होगा जो समुद्र के दरमियान लेट जाए, या उसकी मानिंद जो मस्तौल की सिरे पर सो रहे। तू कहेगा उन्होंने मुझे मारा पर मुझे को चोट नहीं लगी। उन्होंने मुझे पीटा पर मुझे मालूम ना हो। They struck me, you will say, but I was not hurt. They beat me, but I did not feel it. When shall I awake? I will seek another trade. किस तरीके से शैतान जो है जब हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है, तुम्हारी आंखें अंधी हो जाती हैं, हमारे ख्यालात नजर नहीं आते हैं। हम हर चीज को ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है और उसके अंजाम हलाकत है। और बहुत सी मिसालें मिलती हैं ट्रेजेडीज की जो मैंने इधर नहीं लिखी हुई है। हम देखते हैं किस तरीके से पहला सलातीन उसके 22 बाब में शाह यहूदा यूसुफ ने जहाज बनाए ताकि समुद्र पे जाकर सोना इकट्ठा करके वापस लाए, मगर रास्ते में वो जहाज टूट गए। Those ships were broken of King Joseph. क्यों? गुलाम के मुताबिक नहीं चलता था, शील्ड मजबूत नहीं थी, जहाज टूट गए। हम जिंदगी में बहुत सा प्लान करते हैं मगर वो कामयाब नहीं हो सकता है। एक और मिसाल है शाह इसराइल की, यूसिया बादशाह की, किंग
जो दिया। वो सफर कर रहा है और दुश्मन आया और दुश्मन ने कहा भी कि तू मेरा मुकाबला ना कर। उसने बड़े फख्र से कहा कि मेरे साथ खुदा है, और एक ग्रेट ट्रेजेडी हुई वहां। उसको तीर मारा और वो जख्मी हो गया, और वो आज तक वो ट्रेजेडी वो इसराइली मानते हैं। बहुत सी ट्रेजेडीज है हमारी जिंदगी में भी आती है जब हमारी जिंदगी महफूज नहीं होती। काश खुदा हमें तौफीक इनायत करे कि हम देखें किस तरीके से अपनी जिंदगी को अपने महफूज रखना है, ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में अपने को कायम कर सकें। अब सवाल यह है कि 100% मुकम्मल तौर पर शील्ड करने के लिए अपने आप को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात खुदा कबूल करना, और यीशु मसीह का खून हमें घेर लेता है। फिर खुदा का मंसूबा यह है कि जिस्मानी तौर पर हम तंदुरुस्त रहें, ज़हनी तौर पर आगे बढ़ें और रूहानी तौर पर अपने आप काम करें। फिर बीमारी पीछे हो जाती है, टेम्परेरी तौर पर बीमारी आती है। इंसान होने के नाते बीमारी हमेशा नहीं रह सकती। क्यों? अगर हमारा किला मजबूत है, अपने किले को मजबूत रख, राह की निगरानी कर, कमर बस्ता हो, खूब मजबूत रहे। अगर हम ऐसा काम करेंगे तो फिर क्या होगा? हम आगे बढ़ेंगे। उसने उसकी किसी बात को मट्टी में ना मिलने दिया। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई ना कोई अगर हमारे अंदर देर में थोड़ा गुनाह होगा तो वो गुनाह नजर तो नहीं आएगा, जो मैंने हवाला पीछे पढ़ा, मगर आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग के जरिए वो शैतान काम करेगा। बनी इस्राइल ने जंग के लिए दुश्मनों के साथ गए। पहले दिन गए, हार गए। दूसरे दिन गए, दुआ करके फिर हार गए। खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं, खुदा मुझ पर जाहिर कर कि हम क्यों हार जाते हैं। खुदा ने कहा तुम्हारे अंदर गुनाह पाया जाता है। अकल ने और उसके फैमिली ने बाबल से कुछ कंबल और कुछ सोना चुरा कर जमीन में दबा दिया है। तुम्हारे अंदर गुनाह, वो निकालोगे तो फिर मैं तुम्हें कामयाबी बख्शूंगा। फिर उन्होंने वो अकल की फैमिली को अकल को जलाया, वो सामान निकाला चोरी का, फिर बनी इस्राइल को कामयाबी हुई। जब हमारी जिंदगी में छोटा सा गुनाह होता है, बाजार नजर नहीं आता कि क्या हो, शैतान काम करता है, मगर स्लोली आहिस्ता काम करता है। मगर यीशु मसीह का जब हम इकरार करेंगे कि यीशु मसीह में आए खुदा तो मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर, when we will confess our sins clearly, फिर क्या होगा? 100% शील्ड होगी और खुदा में बरकत देगा। फिर किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी। वो बर्रा के खून अपनी गुआई के कलाम के पास उस पर गालिब आए। किस तरीके से यीशु का खून हमें घेरता है और अपनी गुआई से हम आगे बढ़ते हैं। मेरी अपनी शख्सी गुआई में भी बहुत सी मिसालें हैं कि मैं जब एक शहर से दूसरे शहर जाता, रात के वक्त जाता था, तो अक्सर औकात मैं गीत गाना गाता है। When we sing few hymns of blood of Jesus, बर्रा के खून के जब मैं गीत गाता था तो एक महफूज अपने आप महसूस करता था, शैतान दूर रहता। आज का ख्याल यही है, किला को महफूज रख, राह की निगरानी कर, कमर बस्ता हो, खूब मजबूत रहे। हम अपने आप को देखें, जांचें कि किस तरीके से अपने को महफूज करना है शैतान के इब्लीसी मंसूबों के मुकाबले में, ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं। फतह से बढ़कर हमें गलबा हासिल हो, फतह से बढ़कर खुदा हमसे कबूल करते। आमीन।